اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم نماز کا ترجمہ اردو سے عربک سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے نماز کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے میں ہم نے تکبیر، ثنا، تعوذ اور تسمیہ وہ حصہ کیا۔ اس کو ہم نے 8 ایپیسوڈز میں کور کیا، اور ہم نے اردو سے عربک کے انداز میں اس کا ترجمہ سمجھا بھی، اور اس کو مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کر کے پھر ہم نے اس کو گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے سمجھا۔ اب ہم سورہ فاتحہ سے بسم اللہ کر رہے ہیں۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں ٹیچرز ٹریننگ فرم کی جانب سے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جو پہلا سیریز تھی جس میں ہم نے ثنا کو کیا تھا، تو اس کو ہم نے پہلے ووکیبلری کو دیکھا تھا۔ ہم نے ووکیبلری کو اردو اور عربک 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اردو کے الفاظ کو 3 حصوں میں فردر تقسیم کیا ہے۔ ایک جیسے الفاظ جو بالکل لکھنے میں ایک جیسے ہیں، جیسے رحمان، اللہ، بالکل ایک جیسے الفاظ ہیں اور معنی بھی ہمیں معلوم ہے، شدت سے رحم کرنے والا۔ دوسرے وہ الفاظ ہیں غور طلب الفاظ جو اردو عربک میں لکھے تو ایک جاتے ہیں۔ اردو میں جیسے زمین و آسمان ہمیں معلوم ہے اس کا معنی زمین اور آسمان ہے، لیکن یہی واو جو ہے عربک میں جب آ جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں اس کا معنی نہیں آتا، لیکن ہم جانتے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک کیٹیگری اردو کے الفاظ کے غور طلب۔ تیسری جو کیٹیگری اردو کے الفاظ کے وہ ملتے جلتے الفاظ، یعنی الفاظ پہ تھوڑا سا اگر ہم غور کریں، اس میں کچھ توڑ مروڑ کریں، کچھ جوڑ کریں، تو ہمیں اس سے قریب ترین مطلب مل جاتا ہے۔ تو یہ تیسری کیٹیگری ہے، جیسے تبارکا، تبارک سے مبارک تبر ہو۔ پھر عربک میں ہم نے 2 کیٹیگریز میں الفاظ کو تقسیم کیا ہے۔ ایک ہے ضمائر یعنی پروناؤن، جو کہ بہت زیادہ کسی بھی لینگویج میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے کا، ربو کا، رب تیرا۔ اس کے لیے ہم نے کلیہ بھی استعمال کیا ہے۔ اور دوسرا ہے پیور عربک کے الفاظ، جو کہ آپ جتنا پڑھتے رہیں گے آپ کو یاد ہو جائے گا، جیسے من سے۔ بسم اللہ کرتے ہیں۔ اردو کی پہلی کیٹیگری ہے بالکل ایک جیسے الفاظ، اور یہ ریپیٹ ہوئے ہیں، یعنی پہلے جو ہماری سیریز تھی ثنا والی، اس میں یہ الفاظ ریپیٹ ہوئے ہیں سورہ فاتحہ میں اگین، جیسے حمد، اللہ، رحمان، رحیم۔ یہ چاروں الفاظ لکھنے اور میں اردو عربک میں بالکل ایک جیسے ہیں، اور معنی بھی ایک جیسے ہیں۔ صرف فرق کیا ہے کہ اس میں عربی میں ہم حرکات لگا دیتے ہیں۔ اردو کے ایک جیسے الفاظ میں ابھی نئی جو الفاظ ہم پڑھیں گے وہ ہے رب، پالنے والا، اردو میں بہت استعمال ہوتا ہے۔ عالمین، عالم کی جمع عالمین، یانون، جہانوں، الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کو پالنے والا رب۔ مالک اردو میں بالکل ایک جیسا ہے، ملکیت۔ یوم ہمارے یوم الجمعہ، یوم عرفات یہ استعمال ہوتا ہے، بہت کامن ہے یوم یعنی دن۔ دین، جزا کا، ہمارا دین ایسا ہے جو اعمال کی بنیاد پہ انسانوں کو جزا دے گا۔ تو ٹھیک ہے نا، محبوب وہی ہے جس کے اعمال اللہ قبول کرے۔ تو دین ہمارا دین اسلام ہے۔ اس لیے عبد، عبداللہ ہمارے استعمال ہوتا ہے اللہ کا بندہ، یعنی اللہ کی عبادت کرنے والا، اللہ کے حکم پر عمل کرنے والے کو ہم عبداللہ کہتے ہیں۔ پھر صراط، ہمارے یہاں پل صراط بہت لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ ایسا راستہ جس پر پل ہو۔ پھر ہمارے یہاں مستقیم، خط مستقیم استعمال ہوتا ہے خاص طور پہ جیوگرافی میں، اور پل صراط اور صراط المستقیم سیدھا راستہ، یہ اگین اردو عربک میں ایک جیسا۔ مغضوب ہمارے یہاں یہ استعمال ہوتا ہے، مغضوب وہ لوگ جن پر غضب ہو۔ یہ تو ہوگی ایک جیسے الفاظ کی کیٹیگری۔ اب دوسری کیٹیگری ہوتی ہے جو غور طلب کی۔ یہ اردو عربک میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں، صرف غور کرنا ہوتا ہے معنی، اور یہ بھی ریپیٹ ہو رہے ہیں سارے جو ثنا میں پڑھے تھے وہی اب ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ واؤ، زمین و آسمان، شان و شوکت، واؤ، جیسے وتبارک اسمک میں واؤ کا مطلب اور تھا، اب ہم نے پڑھا ولضالین، واؤ کا مطلب اور۔ سیکنڈ جو لفظ اگین ریپیٹ ہوا غور طلب اردو کے الفاظ میں، لا، نہیں، لا علم، لا شعور، ولا الہ، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ثنا میں، نہیں الہ، اور نہیں الہ، اور اب پڑھیں گے ولضالین، اور نہیں خاص گمراہ ہو۔ تیسری غور طلب میں ہم نے پڑھا الفیصل مسجد بیت المقدس یعنی خاص، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں الرحمن الرحیم ثنا میں، خاص رحمان، خاص رحیم، الرحمن الرحیم،
नमाज सूरह फातिहा में अगेन रिपीट होता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, और फिर हम पढ़ रहे हैं वला ज़ालीन, वाव ओ ला नहीं, अल खास। तो वा ला अल जो है गौर तलब लफ्ज जो है, आप अल्फाज हैं, ये बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, और आप देख रहे हैं कि ये अगेन तीनों के तीनों अल्फाज रिपीट हुए हैं। या नून, ये जमा का तरीका है उर्दू में, अरबिक में बिल्कुल एक तरीका है वाहिद से जमा बनाने का मुजक्कर के लिए। आलमीन, आलम से आलमीन, जहानों, जैसे जलालत से जलालतें, तो ज़ालीन यानून आखिर में लगा, तो ये जमा का तरीका है। उर्दू अरबिक में बिल्कुल एक जैसा है। तो अब जब भी हम कोई लफ्ज पढ़ें अरबिक में, तो आखिर में यानून हो तो गौर करें, तो उससे पहले वाला लफ्ज हमें अगर हम वो वाहिद है तो ये इसका जमा का सीगा आ जाएगा। अस्ताइनु, ये अब मिलते जुलते अल्फाज है, थोड़ा सा इसको तोड़ना मोड़ना पड़ेगा। तो इस्ताइनु से इस्तियानत यानी मदद, नस्ताइनु हम इस्तियानत मांगते हैं, मदद मांगते हैं। हे दाल, अब इसमें अगर आप अलिफ या ता डालते तो हिदायत बन जाता है, एह दिना हिदायत दे हमें। तब देखिए बड़ा आसान तरीका है उर्दू के अल्फाज को पिक करना। अन अमता, अन अम इनाम, ठीक है ना। सिर्फ अलिफ आप आइन के बाद डाल दे तो इनाम बन जाता है, यानी अच्छे काम का सिला। अनअमता, इनाम किया तूने, ठीक है कि नहीं। तो ये बड़ा क्लियर हो गया हमें कि उर्दू के अल्फाज अगर काफी हमारे सामने भी आ गए हैं, और आप इंशाल्लाह जैसे जैसे इस पे गौर करते रहेंगे आपको मजीद कुरान में उर्दू अल्फाज ढूंढने में आसानी होगी। ज़ालीन, जलालत, गुमराही, वला ज़ालीन, और नहीं ना ही गुमराहों में से। इन्हीं अल्फाज को हम दोबारा, जो जमायर हमने पढ़े थे उनको हम रिपीट करते हैं एक और अंदाज से। अस्सलामु अलैका, अला पर का आप, अल खास सलाम सलाम। तो आप जो है, जो सामने शख्स होता है उसके लिए होता है, और अगर एक बंदे के ऊपर आपने सलाम फेरना हो तो आप अस्सलामु अलैका भी कह सकते हैं, दो कि हम अस्सलामु अलैकुम कहते हैं। कुम का मतलब होता है आप सब, यानी उसको एक हैसियत देने के लिए हम कुम कहते हैं, लेकिन असूलन जो ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है अस्सलामु अलैका, सलामती हो आप पर। अब याद रखिए का है आप, ठीक है ना। हमने पहले पढ़ा सना में हमदी का, ताला जद्दू का, गैरू का, तो का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ, यहाँ पे का आप। फिर हिम, अलैहिम, अल खास सलाम सलामती, अला पर, हिम उन सब पर, ये भी प्रोनाउन है, उन सब, यानी लोग गैर मौजूद हैं और आप उनकी तरफ बात करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे प्रोनाउन हिम, उन सब। अस्सलामु अलैहिम, खास सलामती हो उन सब पर। एक और प्रोनाउन है ना, ये भी आखिर में इस्तेमाल होता है, अस्सलामु अलैना, अल खास सलाम सलामती, अला पर, ना हम सब। तो अस्सलामु अलैना, हम सब पर सलामती, यानी मैं अगर अपनी फैमिली की बात करूं, आप अपनी फैमिली की बात करें, तो आप कहेंगे अस्सलामु अलैना, हमारी फैमिली पर अल्लाह ताला सलामती करे। तो अला पर ना प्रोनाउन है, आखिर में इस्तेमाल होता है। अब आप एक और करें तो तीनों प्रोनाउन जो है का, हिम और ना, ये इसम के आखिर में आते हैं। तो ये जो प्रोनाउन है का, हिम और ना, ये आखिर में आते हैं। और हमने देख लिया अलैका तुम पर, अलैहिम उन सब पर, अलैना हम सब पर, ठीक है। और सूरह फातिहा में ईया का सिर्फ तेरी, अलैहिम उन सब, एहदिना हम सब को हदायत। अब हम फेल के अंदर, हमें पता है फेल करने के लिए, कोई काम करने के लिए फाइल चाहिए, काम करने वाला चाहिए। तो फेल के लिए जो हम सीगा यूज करेंगे वो क्या होगा, तो आबुदू, मैं इबादत करता हूं। तो हमजा जो है ना, हमजा, इसका मतलब है मैं। एक शख्स जो बोलने वाला है वो कहेगा आबुदू, और अगर हम के लिए इस्तेमाल हो तो हम कहेंगे ना आबुदू, हम इबादत करते हैं या करेंगे, ठीक है ना। हम इबादत करते हैं या करेंगे। तो ना के लिए, ना जो है हम के लिए, सिंगल के लिए हमजा है और जमा के लिए ना है। सो आपने देखा ना है हम के लिए,
ना अबुदू हम इबादत करते हैं, नस्ताइनु हम इस्तिआनत मांगते हैं। तो ना जो है शुरू में आता है और ये फेल के शुरू में आता है। जो ज़माइर है ये अलामत है जमा की और जमा फाइल की, काम करने वाली की, और ये फेल के शुरू में आएगा, ना अबुदू नस्ताइनु। ता अगर माजी में हम कोई बात करें कि किसी ने कोई काम माजी में किया, तो उसमें हम तेरे के लिए जो सामने शख्स मौजूद है उसने अगर कोई काम वाले माजी में किया तो हम ता इस्तेमाल करेंगे, तू यानी ता। या आखिर में आएगा अनअमता, इनाम किया तूने। अच्छा, बड़ी खूबसूरत बात अब आप देखेंगे, सना में हम अल्लाह को अपने सामने हाजिर नाजिर जान के बात करते हैं तो हम कहते हैं सुबहाना का, व बिहम्दी का, व तबारक अस्मु का, व तआला जद्दू का, गैरू का। और कौन है? अल्लाहुम्मा। तो हमने अल्लाह को डायरेक्ट मुखातिब करके बात की सना में। सूरह फातिहा में भी हम अल्लाह से डायरेक्ट मुखातिब करें, कैसे? अनअमता, अल्लाह इनाम किया जो तूने पहली कौमों पे इनाम किया था। तो ता यानी अल्लाह आपके सामने मौजूद है, आप उससे हम कलाम कर रहे हैं। तो नमाज में बड़ी खूबसूरती है, अगर आप तर्जमे से समझें तो आपको महसूस होगा कि आप अल्लाह से डायरेक्ट मुखातिब कर रहे हैं, अनअमता। अच्छा, अब आ गया गैरू का। हम पहले पढ़ चुके हैं सना में गैरू का, सिवाय तेरे। अब हम नया लफ्ज पढ़ेंगे, गैरिल मगजूबी। तो गैर दोबारा रिपीट हुआ, सिवाय किन लोगों के? जो मगजूब हुए, जिन पर गजब नाजिल हुआ। गैर रिपीट हो गया, अरबिक की वोकेबलरी का लफ्ज है। ली नया लफ्ज है, लिल्लाही अल्लाह के लिए, लिल्लाही अल्लाह के लिए। अच्छा, याद रखिए, लिल्लाही जब इकट्ठा लिखा जाएगा ली और अल्लाह, तो उसमें अल्लाह का अलिफ हम निकाल देंगे। क्यों निकालेंगे ये इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। लिल्लाही अल्लाह के लिए, बिल्लाही अल्लाह के साथ। बी आपको याद होगा, बिल्लाही में भी अलिफ का, अल्लाह का अलिफ निकाल दिया था। बिल्लाही अल्लाह के साथ, लिल्लाही अल्लाह के लिए। ईया का, ये ईया का मतलब है सिर्फ आप, ओनली योर्स, एक्सक्लूसिव टर्म है। जैसे हम याद होगा स्कूल्स में, स्कूलों में हमें लेटर लिखवाया जाता था, हम कहते योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, ओनली योर्स। तो ईया का मतलब है कि एक्सक्लूसिवली हम अल्लाह को कह रहे हैं कि ईया का ना आबुदो, सिर्फ तेरी ही हम इबादत करते हैं। फिर हम अगेन उससे कमिटमेंट करें अल्लाह से, ईया का सिर्फ तेरी ही, नस्ताइनु हम तुझी से मदद मांगते हैं। तो यह एक्सक्लूसिव टर्म है। अल्लाजीना, अल्लाजीना में या नून देखें तो अगेन ये जमा का साइन है जो उर्दू अरबिक में कॉमन है। ये अल्लाजीना उन लोगों का, ये आपको याद करना पड़ेगा, अल्लाजीना उन लोगों का। अला हम अस्सलामु अलैका, अस्सलामु अलैहिम, अस्सलामु अलैना, अला पर हम ये पढ़ चुके हैं। पर यह अरबिक का लफ्ज है, सूरह फातिहा में अब हमने नया देखा है। आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज्यादा उर्दू के अल्फाज अरबिक में खास तौर पे नमाज में आते हैं हमारे सामने, हमने कभी गौर नहीं किया। उसके बाद अरबिक की कैटेगरी में प्रोनाउंस बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, और बहुत कम अल्फाज हैं जो प्योर अरबिक हैं जिसका तर्जुमा हमें सीखने की जरूरत है। तो जज़ाकल्लाह, कोशिश कीजिए नमाज को तर्जुमे के साथ पढ़ने की, समझने की। अल्लाह ताला हमारी नमाजें, हमारे आमाल कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।